In further studies, we have to read about the next methods of measuring national income, which is also known as value added method. Value added method of measuring national income or product method. It is also known as product method because in this method we have to add the value of the product produced in the economy. There are three methods. Number one, we study earlier is national income. The second one is value added method. वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्शन के जो थ्री सेक्टर्स हैं, तो तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है इन एन अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग एन फिजिकल ईयर वी कैन से, तो उन सभी को जब हम जोड़ते हैं एंड व्हेन वी कन्वर्ट दीज आउटपुट टू मॉनेटरी फॉर्म्स देन वी गेट प्रोडक्ट ऑफ accounting year. Therefore, value added method, that means addition of the value of the goods and services produced in an accounting year. Value added method. It is also known as product method. Value added method measures national income in terms of value addition by each producing enterprises in an economy during an accounting year. ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में कितने सेक्टर्स हैं? 3 सेक्टर्स. ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी, द सेकेंड वन इज सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. द फर्स्ट, as you see, the primary sectors includes agriculture sector. It is also known as GVA or of primary sector, that means gross value added of primary sector. And the second sector is related to industrial sector, as I tried to show you with this picture. The second is GVA of industrial sector or gross value added of industrial sector, that means primary sector plus industrial sector plus GVA of tertiary sector, that means the sectors which give supports to both of the sectors through their services. The production of all the three sectors during an accounting year, we obtain GDP at market price, that means gross domestic product at market price, because the product is related to consumer and consumer consumes by purchasing them. Therefore, it is known as market price. All the taxes are included in their final goods. Now, value added method. Value added means it is the difference between value of output of an enterprise and the value of it intermediate consumption. That means value added क्या हुआ, जो किसी भी फाइनल गुड्स का जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी जो उसका MRP होता है, उसमें से माइनस किसको करते हैं हम? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको IC भी बोला जाता है. तो जितने भी इंटरमीडिएट इनपुट्स के ऊपर जो खर्च हुआ है, उसको अगर हम फाइनल गुड्स के प्राइस से माइनस करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू एडेड ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो कि यहाँ फार्मूला के द्वारा भी दिखाया गया है. वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, वेयर IC इज रिलेटेड टू intermediate consumption. That means all the inputs which is used in the process of production, those price are related to intermediate consumption. Next one is value of output. Value of output, it refers to the market value of the goods and services produced by a firm during an accounting year. यानी कि किसी भी दिए हुए वर्ष में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनका
चाहे वो प्राइमरी से रिलेटेड हो, सेकेंडरी से हो या टर्शरी से हो, तो उनका जो मार्केट वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स, दैट मीन्स जो हमारी वैल्यू जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस्ड होते हैं उनका एक वैल्यू होता है, और देयरफॉर व्हेन वी डिटरमाइन द वैल्यू in terms of MRP of different types of goods produced in the economy is also known as sales, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जिसको हम डेल्टा स्टॉक भी कहते हैं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, पहले हम इसको पहले मैं इसे समझा देती हूँ कि ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स क्यों कहा गया है। सपोज डैट अगर हमारे इकोनॉमी में जितने भी तीनों सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन हुआ है, अगर उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट 10,000 करोड़ है, तो जब ये मार्केट में सेल होगा, बिकॉज द फाइनल गुड्स इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनल price or MRP of the final goods, therefore it is known as final value of output। और जब इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को मार्केट में सेल करते हैं, द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग दोज गुड्स इज नोन एज सेल्स, देयरफॉर वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स। उसको हम ये इस तरह भी कह सकते हैं जैसे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सपोज डैट जैसे इन द मॉर्निंग व्हेन द फर्म ओपन, देन द सेल्स जो भी था, यानी कि उस समय जो सेल था पहले का, जिस समय खोला गया, उसमें प्लस किया जाता है कि दिन भर में जितने भी जो गुड्स थे वो सेल हुए मार्केट में। तो चेंज इन स्टॉक दैट मीन्स अगर उस फर्म में पहले से 40 अगर स्टॉक में गुड्स था और 10 अगर वो चला गया मार्केट में सेल होने के लिए, देन 10 प्रोडक्ट इज एडेड टू दिस सेल्स and remaining 30 units will be its inventory, जो कि अभी मार्केट में नहीं गया है। तो इसलिए जो पहले से सेल्स था उसमें अगर जो आज का मार्केट में चला गया इस ओपनिंग अकाउंट का, और जो अभी बाद में दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसको बिगिनिंग और एंडिंग। तो एंडिंग ये हो गया नेक्स्ट डे का, और उसमें आज जो इसमें सेल हुआ इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक और डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जैसा कि यहाँ भी बताया गया है, अभी मैंने यहाँ भी आपको बताया कि अगर मान लीजिए आज फर्म सुबह खुला है और उस समय जितने भी जो भी सेल्स था, और उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। दैट मीन्स ये अकाउंटिंग ईयर जो होता है जनरली ये 31 मार्च और 1 अप्रैल से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा फिजिकल ईयर जो है वो अप्रैल से शुरू होता है। तो 31 मार्च को जितने भी स्टॉक में कंपनी में जितने भी स्टॉक थे उस समय वो, और उसमें से हम क्या करेंगे कि उसमें से माइनस जब करेंगे कि फिर नेक्स्ट कमिंग ईयर में 31 मार्च नेक्स्ट जो अकाउंटिंग ईयर जो चल रहा है ओपनिंग स्टॉक का, उसमें कितने चेंजेस हो रहा है, डैट मीन्स वो मार्केट में कितने चले जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा एस या चेंज इन स्टॉक। इसको हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं आपको। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जैसे अभी जो 2020 चल रहा है उस अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग स्टॉक कब था? 1 अप्रैल। और ये जो 2019 का जो ईयर चल रहा था उसका क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च। तो 31 मार्च को जितना भी स्टॉक में जो भी गुड्स थे, और फिर उसको हम अगर देखेंगे ओपनिंग स्टॉक जो आज हुआ उसमें जितने भी हुए, तो उसको हम कहेंगे कि स्टॉक में कितना चेंजेस हुआ। इसको कहा जाता है डेल्टा एस।